رات بھر جس جگہ پر نوجوان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت منانے کے لیے تیاریاں کرتے رہے، انہیں کیا خبر تھی کہ اسی جگہ پر ان کی چند گھنٹوں کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اس افسوسناک واقعے پر پورے علاقے کی فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشک بہار ہے۔ اعلیٰ یہ لمحات کسی گھرانے کے اوپر نہ لے کے آئے، کسی خاندان کے اوپر جو ہے وہ نہ لے کے آئے۔ آج کے جنازہ کے اندر کثیر تعداد علماء اکرام کی یہاں پر موجود ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جو ٹائم بچ گیا ہے 2 منٹ سب اپنی حاضری لگوا لیں اور ان نوجوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کریں کہ رات بھر محفل میلاد کے لیے یہ کام کرتے رہے، پوری رات جاگتے رہے۔ یہاں پر صبح اسی مقام کے اوپر محفل میلاد مصطفیٰ کی ہوئی اور پوری رات جاگتے رہے۔ صبح اپنے بھائی کو لینے گئے اس لیے کہ واپس آ کر ہم سارے محفل میلاد اور جلوس میں شامل ہوں گے، تو انہیں اللہ نے شہادت کا رتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ تو تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ محمد یونس صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں۔ حافظ محمد یونس صاحب۔ کثیرہ تمام احباب آواز بلند مل کر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ احباب ذی وقار، انتہائی دکھ اور افسوس کا یہ عالم ہے کہ جیسے کہ میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ذوالفقار صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ یہ مہاجر کیمپ کا یہ ایک پہلا واقعہ ہے کہ ایک ہی گھر میں سے 3 جنازے اور وہ بھی 3 نوجوانوں کے جنازے ہیں۔ احباب ذی وقار، اگر کسی گھر میں سے ایک میت اٹھتی ہے تو گھر والے وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ جس گھر میں سے 3 میتیں وہ بھی نوجوان اٹھتی ہیں تو اس گھر والوں کا جو صدمہ ہوگا وہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہ گھر والوں کو صدمہ نہیں پہنچا بلکہ یہ نوجوان، ان کو خراج عقیدت بھی میں پیش کرتا ہوں کہ آج کو نوجوان مختلف کاموں کے اندر، مختلف دندوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن یہ نوجوان ان نوجوانوں کو یہ سبق دے کر جا رہے ہیں کہ میں نے رات بھر یہاں پر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے رات بھر یہ جھنڈیاں لگاتے رہے ہیں، یہاں پر سجاوٹ کرتے رہے ہیں، لیکن صبح ان کا خیال یہ تھا کہ میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی محفل میلاد میں اس کی بھی شرکت کو یقینی بناؤں گا تاکہ تمام بھائی مل کر محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر کام کرے۔ احباب ذی وقار، یہ صدمہ صرف گھر والوں کو نہیں پہنچا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تحصیل چڑوئی اور ضلع کوٹلی جہاں تک احباب نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، جہاں تک کسی نے کالوں کے اوپر رابطہ کیا ہے، ہر آنکھ آج اشک بہار ہے، ہر آنکھ میں سے آنسو جاری ہیں۔ ہر آدمی ان نوجوانوں کی میتوں کو دیکھ کر، ان کی باڈیوں کو دیکھ کر صدمے سے 2-4 ہو رہا ہے۔ احباب ذی وقار، لیکن دوسری طرف میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کی رات بھر جو محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے
यहाँ पर अपने काम सर अंजाम दे रहे थे। अल्लाह उस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। विलाद मुस्तफ़ा की बरकत से, हुजूर के विलादत बसादत की बरकत से अल्लाह इनके कबूल पर करोड़ हाँ मरतबा अपनी रहमतों बरकतों का नज़ुल फरमाए। 2 मिनट के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फाज़िल साहब। वक्त की पाबंदी उलमा ज़रूर फरमाएं। 2 मिनट के आगे नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून। खालिक़े कायनात ने फरमाया कि जब मौत का वक्त, मौत आ जाती है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून, 1 सेकंड आगे और पीछे नहीं होती। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौता वलो कुंतुम फी बरूज मुशय्यदा। अगर तुम पक्के गुंबदों के अंदर भी छुप जाओ तो मौत तुम्हें वहाँ भी तलाश कर ले। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जो महीनों नहीं, सालों नहीं, सदियों याद रहती है। उस तरह की एक मौत ये भी है। जनाजा बजाते खुद एक वाज है, लेकिन ये जनाजा उससे अफजल वाज है कि 3 नौजवान आज अल्लाह को प्यारे हो गए। अब अंदाजा करें कि उन घर वालों पर क्या बीत रही होगी जिनके घर से 3 नौजवान बच्चों की लाशें होंगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन मुतवफ़्फ़ीन को अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। लाहिकीन रिश्तेदार अजीज़ो अकारब को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए। एक पैगाम दिए जा रहा हूँ, बड़े रिश्ते हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं, बड़ी कराबतें हैं, लेकिन सब रिश्ते, सब मोहब्बतें, सब कराबतें, सब ताल्लुक कब्र तक आकर साथ छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे ताल्लुक भी हैं जो कब्र में तो नहीं जाते लेकिन कब्र में काम आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात याद रखें, एक रिश्ता ऐसा भी है जो कब्र में भी काम आएगा, वो रिश्ता उम्मती और नबी का। मियाँ साहब फरमाते हैं, लोगी मैनू आन डरावन रात कब्र दी काली, पर मैं सुनिया उठे आना उसने जिसदे मुंडे कमली काली। एक शौकत शायर हुआ है, क्योंकि वक्त कम है, वो कहता वक्त रज़ा जो मैंने कहा या नबी अल मदद, उठा जो कब्र से तो फिर मैंने कहा या नबी अल मदद। और शौकत मेरी कब्र का ये मंजर अजीब था जब मैंने खुद नबी से कहा या नबी अल मदद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वसनदी औलियाइ व अस्हाबिहिल मुआदिदीन लिअअदाइ अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबहा। सदक़्त या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये लम्हा आप सब बखूबी जानते हैं, बड़ा गमज़दा, और हमारे दिल रो रहे हैं इस बात पर कि एक ही घर से 3 जनाजे उठ रहे हैं। दूसरी तरफ इन नौजवानों की कोशिश और काविशों को देखते हुए आज मुझे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमा उनकी इबारत
सवाल किया गया आला हजरत से कि जिस शख्स के जनाजे में 3 सफ़े हों फतवा रज़विया शरीफ के अंदर, क्या उस पर जन्नत वाजिब है? तो आला हजरत ने फरमाया जी हाँ, 3 सफ़े हों जन्नत वाजिब है। खुशकिस्मती दूसरी ये है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किया। मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, जब इन जवानों से सवाल होगा तो हुजूर का जब चेहरा अनवर सामने आएगा तो ये जवान जवाब देंगे जी हाँ, हम जानते हैं इनको, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। फरिश्ते पूछेंगे। इसकी तफसीर वन्नाज़ियात ग़रक़ा में जनाब गुलाम रसूल सईदी साहब ने बड़ी मुफस्सल तफसीर बयान की है। उसके चंद नुकात आपके सामने जो है ना वो बयान करना चाहूँगा कि जब अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं उन फरिश्तों की कसम जब काफिरों की रूहों को फरिश्ते खींच कर निकालते हैं, किस तरह खींचा जाता है इसकी भी तफसीर बयान की है। मुफस्सिर बयान करते हैं कि यूं बयान करते हैं कि अगर एक चिड़िया है उसके जो है ना वो उसको जिंदा जला दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है, काफिर की रूह को ऐसे जिस्म से खींचा जाता है। तो मुसलमान की रूह को कैसे खींचते हैं फरिश्ते, कैसे निकालते हैं? सरकार फरमाते हैं मुसलमान की रूह को फरिश्ते इस तरह निकालते हैं जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है, आटे से बाल निकाला जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, बात करने का मकसद ये है कि हमने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फरमा बरदारी की, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये इन नौजवानों ने बड़ी कोशिश की है। बच्चे लगे रहते हैं, खराज तासीन पेश करते हैं, लेकिन कोशिश किया करें इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी ज़िंदगी गुजरे। एक सहाबी हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत कब कायम होगी? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे कब्र की तैयारी क्या की है? कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक का मफहूम है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो यही तैयारी है। सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाए। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। कोल्ली से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए जनाब महमूद एडवोकेट कुरैशी साहब ने, उससे गुजारिश करूँगा 2 मिनट की अपनी हाजिरी। महमूद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के इस मौका पर जहाँ मुझसे कबल उलमा हज़रात ने अपना बयान फरमाया और कहा यह क़यामत सुगरा किसी एक घड़ी है बिलखसूस जो वर्सा के लिए, इस पर क्या बात की जाए? अल्फाज जो है कम पड़ जाते हैं जब नौजवान जनाजे निकलें, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करे, इनकी मग़फ़िरत फरमाए और पसमानदान जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन जिस तरह इन्होंने रात गुजारी है, आज मिलाद का दिन था और जिस मोहब्बत से ये इन्होंने काम किया और फिर अपनी जान आफरीन के हवाले कर दी। चूँकि टाइम कम है, इसमें ज़्यादा बात नहीं की जा सकती। जो उलमा हज़रात ने फरमाया कि ऐसे अमाल करने वाले जो हैं उनकी रूह कैसे कब्ज़ की जाती है और उन पर जो सवाल पूछे जाते हैं कब्र के अंदर, उनका जिक्र फरमाया। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ये वो बातें हैं जो बातन से ताल्लुक़ रखने वाली हैं, ये बातन से ही महसूस की जाती हैं, ये आम नहीं महसूस की जा सकती हैं। और इसके लिए कहा गया कि गर खाही दलीलें, कि अगर इन बातों की जो उलमा हज़रात ने अभी बयान की है इसकी दलील बयान की जाए, गर खाही दलीलें आशकश बाश, कि अगर इसकी दलील चाहते हैं तो ये ज़हनी अक्ल में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये मावराए अक्ल चीज़ें हैं, ये दिल से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं। तो कहा गरहाई दलील आशिकश बाश, कि अगर इसकी दलील चाहते हैं तो आशिक बनकर देखो। मोहम्मद खुद बुरहान अस मोहम्मद, तो मोहम्मद खुद अपनी पहचान खुद है। ये इनके एहसाल सवाब के लिए एक शेर मैंने फ़ारसी का पढ़ दिया, चंद अशार फ़ारसी के, वो भी नात है, वो पढ़ कर इजाज़त दूँगा कि ए चेहरा ज़बाई है तू रश के बुतान आज़री, हर चंग के वसवत में कुनम दर हुसन अज़ां बाला तरी। चूँकि आज 12 रबीउल अव्वल है, जिसमें ये 3 हमारे नौजवान जो हैं सफ़र पर रवां हैं, इसलिए ये नात जो है मैंने कहा फ़ारसी की नात इनकी नज़र करता हूँ एहसाल सवाब के लिए। ए चेहरा ज़बाई है तू रश के बुतान आज़री, हर चंद के वसवत में गुनम दर हुसन अज़ां बाला तरी,
آفاق ہا گردیدم میرے بتوں ورزیدم بسیار خوباں دیدم حقا عجائب دل بری من تو شدم تو من شدی. یہ جیسے اس وقت یہ کیا رات بھر انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری رات گزاری, چراغاں کیے, سارا کچھ کیا کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری. میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ماشاءاللہ. 1 منٹ کے لیے پروفیسر ظفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. حاضری روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پیش رو مقررین نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کر چکے ہیں اور یہ اس طرح کا موقع بھی نہیں کہ کوئی تقریر کی جائے. اور پھر یہ سردار سید محمد خان مرحوم کے پوتے تھے اور ان کی فیملی سے مولانا امین صاحب نکیال سے تشریف لائے ہیں. وہ بھی ظاہر تفصیل سے گفتگو کریں گے. محمود اختر قریشی ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے نمائندہ ہیں انہوں نے بھی بات کی. اشعار کی بات چلی ہے اس موقع پہ صرف جو ہے نا لواحقین سے. اور آج عجیب قسم کا ماحول ہے کہ ہم پورے مہاجر کیمپ کے سوگواران بھی ہیں اور لواحقین بھی ہیں. اور میں اپنی 40 سالہ زندگی میں پہلے موقع دیکھ رہا ہوں کہ ہم سب جو ہے نا سوگوار ہیں, لواحقین ہیں. اس موقع پر میں ان بچوں کے والدین سے, ان کے عزیز و اقارب سے, اور جہاں جہاں یہ پڑھتے تھے, کشمیر اسکول سسٹم کا ایک طالب علم تھا, انتہائی ہونہار طالب علم تھا, میں اس کے اساتذہ سے, کشمیر اسکول سسٹم کی انسانیہ سے, اور ہم سب ایک دوسرے سے تعزیت کرتے ہیں. یہاں محمود اختر قریشی صاحب نے کافی شعر پڑھے, تو آج یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ویسے کسی بھی شاعر کا شعر اگر بدل کر اس میں ترمیم کر کے پڑھیں گے تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے, اور نہیں اصولاً بھی جو ہے نا وہ ادبی لحاظ سے بھی غلط ہے. لیکن آج تو ہم یہ کہیں گے کہ بچھڑے کچھ صدا سے کہ رت ہی بدل گئی. یہ 3 نوجوان پورے آزاد کشمیر کو سوگوار کر گئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 1 منٹ کے لیے ولی محمد ریاست صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو یہ لمحات ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. میں اپنی طرف سے اپنے جو افسران ہیں, اے سی صاحب, تحصیلدار صاحب, انہوں نے مجھے بھیجا ہے. ویسے میں آ رہا تھا تو وہ یہاں نہیں ہیں. ان کی طرف سے سب مہاجر کیمپ اور ان کی طرف سے یہ افسوس کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ گلپر میں ہوا ہے اور اس پٹوار میں نہیں ہوا. اگر میرے متعلقہ جو بھی ہوا تو اے سی صاحب کی طرف سے ہوا, تحصیلدار صاحب کی طرف سے ہوا. انصلاحات جو بنے گی وہ میں ان پٹواری صاحب سے اگر بنے گی فیل فور کر کے اور اپنی طرف سے اور اپنے انتظامیہ کی طرف سے بات کرتا ہوں گا. 1 منٹ کے لیے پروفیسر محمد فیاض صاحب تشریف لائیں, تو 1 منٹ کے لیے اپنی عزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام, آج جو سہانا ہوا ہے اس نے ہم سب کو بےحد دکھی کر دیا ہے. اور ایسا سہانا, ایسا واقعہ جو والدین بچوں کی آمد کے منتظر تھے, آج وہ قبرستان ان کا منتظر ہے. میرے دوستو, یہ اتنا دکھ دینے والا واقعہ ہے, اتنا پریشان کرنے والا واقعہ ہے. میں اپنے ان بھائیوں کو جن کے یہ اولاد تھے, ان عزیزوں کے جن کے یہ بھائی تھے, ان کے جن کے یہ بیٹے تھے, بلکہ ہم سب کے یہ بیٹے تھے, ہم سب کے یہ بھائی تھے, یہ ہم سب کے عزیز تھے, آج ان کے جانے سے ہم سب دکھی ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عظیم عطا فرمائے. ان بچوں کی جو موت ہے شہادت کی موت ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اہلیان چڑوہی کی طرف سے ہم جتنے لوگ یہاں ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیزوں کی مغفرت فرما, اور ان سے اگر انسانی ناطے سے زندگی میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہوا ہے تو پھر اسے معاف کر کے ان لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے حوالے سے انہیں معاف کرو, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وبا علینا البلاغ المبین. میں ملتمس ہوں جناب محترم چیئرمین راجہ محمد ریاست صاحب سے کہ وہ 2 منٹ اپنی عزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقہ جنازہ یہ تقریر کا ٹائم نہیں ہے اور نہ آج تقریر ہو سکتی ہے.
आज का जब सूरज तुलू हुआ सुबह, तो ये सारा वाक़या मेरे पड़ोस में, और मैंने जाए वकूफ़ फ़ौरन जाकर वहाँ पहुँचा, और जो कैफियत आज हमारे इस कैंप की और उसकी और पूरे हलका की, और जो कुछ हमने आंखों से देखा है, आज कितना बड़ा दिन है, लेकिन उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस इम्तिहान से पास होने के लिए एक शर्त रखी है। इसका अजर भी बहुत बड़ा रखा है कि अगर तू सब्र करें तो जो ये आर्जी दुनिया है, और वहाँ पर जहाँ नफसा नफसी होगी वहाँ पर इसका अजर बहुत मिलेगा, लेकिन हम बेसब्रे हैं। मेरी ये दुआ है वर्षा से कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र दे और उसके बदले अजर अजीम अता फरमाए। ये कौम के बेटे थे, और जिस मिशन के लिए ये यहाँ से गए कि आज के दिन ये बड़ा दिन है, और आपने दूसरे भाई को लेने के लिए सहसा गया और उसी स्पीड से आ रहा था, और फरिश्ते ने उस वहाँ से आगे नहीं आने दिया। इन तीनों को जाते हुए होता तो एक बच जाता, लेकिन तीनों ने एक दफ़ा जाना था। तो मैं पूरे आप जितने यहाँ पे ये जो शुरकाए जनाजा हैं, इसका अजर अल्लाह ताला ही आपको देगा, और हम सारे इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं। ये अल्लाह का फैसला है, यहाँ इंसान बेबस है और उसके फैसले अटल हैं। कोई पता नहीं किस पौड़ी पे हमारी जो है ना वो मौत वाक़या होगी, ये वहाँ तय था। तो अल्लाह तबारक तआला आपको सब्र दे और उसके बदले अजर अजीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। एक बहुत बड़ा ये सानिया है, तो जितने भी शुरकाए जनाजा हैं आपसे मैं माजरत के साथ कुछ टाइम जो है वो ऊपर होगा। काफ़ी तादाद में मेहमान तशरीफ़ लाएँ। हज़रत अल्लामा अमीर शाकिर साहब नकियाल से आएँ, जो वरसा की तरफ से इनके वारिस भी हैं। आखिर में वो गुफ्तगू जो है वो ज़रूर फरमाएंगे, तो कुछ वक्त अगर ऊपर हो जाए तो आपने बर्दाश्त करना है। 1 मिनट के लिए चौधरी शाहनवाज से साहब से मैं गुजारिश है कि 1 मिनट। चलो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो दर्दनाक और दिल खराश वाक़या है, इसका जितना भी अफसोस किया जाए इतना ही कम है। समीर ज़िवकार एक हदीस उसका तर्जुमा बताकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। हदीस का मफहूम इस तरह है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ 3 चीज़ें लिख दी जाती हैं। एक मौत का वक्त, मौत का तयन और जगह का तयन, यानी ये चीज़ लिखी जाती है कि इसने कहाँ मरना है और इसकी मौत कब वाक़या होगी। नंबर 2, रिस्क का तयन हो जाता है कि इसका रिस्क कितना है, इसने कितने अरसे तक जिंदा रहना है। तीसरी बात जो लिखी जाती है वो उसके नसीब होते हैं। कोई आदमी जो है वो नसीबों में, कोई मालूम में बैठता है, कोई बेचारा लकड़ियाँ उठाकर गुजारा करता है। तो ये नसीब की बात होती है। ये हदीस का मुख्तसर मफहूम है। तो ये वाक़या जो वाक़या हुआ है, मैं दिली तौर पर सच्ची बात है, जब मैंने सुबह सुना तो मेरा जो दिल है ये खून के आंसू रो रहा था। मेरी दुआ है कि ये जो लायकीन है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको जन्नत, जो हमारे शहीद हुए हैं बच्चे, इनको जन्नत और फिरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए। 1 मिनट की हाजिरी के लिए चौधरी मोहम्मद फरीद एडवोकेट साहब। शौकत फरीद एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज न जड़ा सानिया है, इस सानिया पर मैं सारे जो दोस्त साथी बुजुर्ग इतने शामिल हो, सारे नी अखां जड़ियां ने अशकबार सब की अफसोस करना, तो लवाकिन की बिलखसूस मेरी तरफों बहुत बहुत अफसोस। ये इतना बड़ा हादसा है कि अज सिर्फ साड़ा हल्का नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जड़ा इस वक्त हर आंख जी है वो अखबार है। अल्लाह ताला किसी दुश्मन की ऐसा मौका ना तकने की तौफीक दे कि 3 जवान बच्चे जड़े उन्होंने शहादत जड़ी है अल्लाह ताला ऐसे अनटाइमली पर उन्हें उठाया। तो मेरी तरफों जो लवाकिन जितने उन्होंने अजीज़ वकार पर उन्होंने दिली तौर पर बहुत बहुत अफसोस, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जन्नतुल फिरदौस की जगह अता फरमान।
सकता है। ओवैसी साहब को कौन सा काम था जो कोटली गए, उनको डीसी का हुक्म मेरे सामने हुआ, उसके बावजूद वो कोटली गए और मेरी डेड बॉडी ये आ रही थी और रास्ते में मिले, उनको मैसेज कन्वे करें कि ये 3 जने आपके लिए ज़रूरी थी, बल्कि फजूल मीटिंग आपके लिए नहीं ज़रूरी थी। ये मेरा मैसेज कोई भी हो तो कन्वे कर दे चिचोड़े को, राजा तारक। जितने भी अफवाज मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि वो तकबीर कहते रहें। जनाजा बहुत तादाद में जो लाइन करवा रही है, इस तरह कारी साहब इस तरह मुकब्बरे को जाए मतलब कोई कारी साहब है, कोई मौलवी साहब ऐसे लिए तो बोली इधर मुकब्बर है कोई? अच्छा कोई है मौलवी? कारी साहब तुम इधर पीछे हो जाओ, तुम इधर ना लो जो पीछे हो जाओ। थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मेरे भाइयों दोस्तों फरमाने और पढ़ते हैं जो है तकबीर के बाद वो नमाज वाली सना और दूसरी में जो आज पूरा दिन दरूद पढ़ते रहे उनमें से कोई और आखिर में कोई दुआ जो आपको आती है पढ़ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हाँ इल्तिजा है कि अल्लाह हमारी दुआ की या मौलाना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह हमने नमाज जनाजा पढ़े से कबूल फरमा। या अल्लाह हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक दिन के सदके आज जो मेरे बेटे ये तीनों जा रहे हैं नौजवान, ये शुहदा के इस दर्जे में आला दर्जात इन्हें अता फरमा। या इलाही इनके जो है दीगर अहबाब भी ये शुहदा की कब्रें इन शुहदा के सदके या अल्लाह इनको दर्जात को और बुलंद फरमा। और आज के दिन की वसातत से या अल्लाह सरकार के निस्बत से या अल्लाह इनके दर्जात को और बुलंद फरमा कर जुमला सवाब जो है हुजूर करीम रहमत दो आलम की बारगाह में और जुमला अंबिया औलिया के तमाम की बारगाह में उनके तवस्सुत से जुमला जो कलामात ये बात पढ़ी गई है, मेरे भाइयों ने दूरों नज़दीक से जो कुछ पेश किया इसे कबूल फरमाकर जुमला सवाब जो है मेरे तीनों बेटों को सवाब अता। या अल्लाह इन तीनों बेटों की दरजात बुलंद फरमा। या अल्लाह तू अपने करम से इनकी बख्शिश फरमा, इनके वालिदैन को सब्र अता फरमा, सब्र पे अजर भी अता फरमा। या करीम रब इस माजर कैंप के लोग जितने भी आ रहे हैं या अल्लाह सबको सब्र, और जिस स्कूल में ये पढ़ते रहे उनके असातिज़ा और यहाँ के नुमाइंदगी करने वाले अहबाब जो यहाँ तशरीफ फरमाए या अल्लाह सबको सब्र अता। ऐ करीम रब तू अपने करम से अपने फजल से हमारी दुआओं को मुस्तजाब अता फरमा। जिन उलमाए कराम ने आज के दिन के तवस्सुत से जो कुछ फूल निछावर किए हैं दुनिया और आखिरत में या अल्लाह उन्हें खुशियाँ नसीब फरमा। और या अल्लाह तू इसे कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। आखिर में फिर दुआ करें या अल्लाह सब कब्रिस्तान वालों की भी बख्शिश फरमा, इन बच्चों की भी बख्शिश फरमा और इनके वालिदैन अबो अजदाद अजीज़ो कारब या अल्लाह जो इस वक्त पसमदगान में उन सबको सब्र जमील अता। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना रब्बना या मौलाना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिना व नबियना व शफीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व